Namaskar, good evening. I hope all of you are safe, all your families are healthy, all your loved ones are healthy. Every one of us is trying to maintain social distancing, and also importantly, everyone is trying as much to help as possible. आज 11 on 10 के सीरीज के 5वें एपिसोड आज 11 on 10 सीरीज के जो 5वें एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं वो हैं विराट कोहली. Now for me, he is the most followed and loved personality in our country because of the sports he plays, because of the way he plays, because of the way he bats, because of his talent, because of his attitude and aggression on the pitch, because of being a good example. Everyone in the country wants to know about him, wants to know as much as possible about him, and that's why he is so much loved and followed. Now why I'm saying you this is because I want to excuse myself from going to the whole page of his achievements. Talking about achievements, there is no sporting award in our country which he hasn't won. Man of the matches, man of the series, tournaments, being a good example, batting records, already broken so many, makes his own. To be honest, he is on track of breaking almost all the records, all the batting records that ever was. Now this is why he's so much loved and everyone follows him. And of course, I too love him for these reasons, but I will give you 2 reasons why I'm a fan. I'm a fan because growing up, we were all Sachin Tendulkar fan. All of us. And then when he retired, at the same time, I had my own profession. So we stopped watching cricket. I completely stopped watching cricket. I used to listen to news and keep a track of what the Indian team is doing, but I didn't watch cricket. And then we heard about Virat Kohli 10, 11, 12 years back. He did well here and there. And I thought, new kid doing well. And then 100. And then again 100. And then again 100. Again wins a game. Again. And that is the reason why I got back to cricket. I just wanted to find out who this guy is. And when I started watching him, and again, and again, and again, with his talent and with the way he plays, he brought me back to cricket. Now, even with my busy schedule, I take out time to watch him. And the second reason why I'm a fan is, this guy is unbelievable when it comes to giving his best. I know him personally and I call him a friend. There is no stone unturned when it comes to giving his best, be it his diet, his recovery, or giving everything that he has on the pitch. And that's why I'm his fan. So today on 11 on 10, I've come with 10 questions that I wanted to ask. I hope with these answers, the fans can learn a little bit more about him, because you guys know almost everything about him. And more importantly, I hope the captain of the Indian cricket team enjoys his time and loves the question. So without further ado, वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं ट्राई करता हूँ कप्तान साहब को ढूंढने की और उनको लाइव में लाने की. Hello, sir. Champ, how are you? I'm good. How are you? I'm good, man. I'm good. Good to First see of you. all, Champ, yeah, same here. Thank you so much for doing this, yeah. No, it's a pleasure. It's a pleasure. We keep talking and keep fooling around. So why not have some fun with our fans? Yeah, exactly. So, before we start, आपने देखा बचपन में जब वो मम्मियाँ नहा धो के तैयार करती थी, बाल एक तरफ और चलो जाओ तेल लगाकर. तो आज मैं तैयार हो रहा था, मेरी बीवी कहती खड़ी हो, मैं खड़ा. तो इसलिए ऐसा है. A lot of people ask me what's the reason of my hairstyle. This is the reason. So sweet. Both How दिन is it मुझे going? भी याद है. Very good. All well. Just finished training. Just in time. आपने टाइम दिया हुआ था. मैंने कहा लेट नहीं करना. स्किपर को लेट नहीं कर सकते.
बस पहुंच गए अभी, just finished training. Just doing a little bit every day. You know how it is. Um, you can relax, but you can never really, go out of shape or off the path that you're on. So yeah, I know that you I'm do sure. it as well. We both try and keep up to it, because eventually we have to get back to responsibility and just guiding our visions for our respective environments. So yeah, it's fun. It's fun. Exactly. And how is the family in Family is Mumbai good. and in Delhi? Yeah. Yes, all good. Anushka is very well. Family in Delhi is also fine. They're all healthy and safe. Obviously, situation is a bit more tricky here, but yeah, we are safe. We are indoors. No real interaction with anyone outside. ठीक है, अच्छा चल Okay. रहा है. So far so good. Bangalore, Good to hear Bangalore's that. fine. It is. It is. We are actually in the green zone, but I think government ने Hmm. advice दिया है कि बाहर ना निकले. So we're trying to stay at home. We're still waiting Hmm. for everything to be Hmm. fine and then only go out. Okay, Yeah. that's nice. तो That's nice. तो ये जो series है, champ, I bring 10 questions and I try my best Yeah. to not be हाँ. repetitive. Okay. बट मैं 3 दिन से आपके इंटरव्यू देख रहा हूँ. इंसानों ने आपको जितना पूछना था, चाहे आपके दाढ़ी के बारे में हो, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके कोई सवाल छोड़ा ही नहीं. तो मैं लगा हुआ हूँ सवाल पूछने के लिए. हाँ. एंड बिफोर आई हाँ. स्टार्ट, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहां आपने एक इंटरव्यूअर को पूछा हाँ. कि गो एंड चेक योर फैक्ट्स एंड देन आस्क मी, हाँ. थोड़ा नाराज होते हुए. तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन बनाए सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं. तो अगर नाराजगी आई, मैं नाम भेज दूं जो जो लगे हुए थे आपको तो सवाल मैं बनाने में. आपको तो मैं बाद में मैसेज भी कर सकता हूँ ना. आपको तो मैसेज भी कर इसलिए, सकता हूँ. वो लोग तो पूछ के भाग लेकिन मैं जाते हैं उनका ना नाम भी इसलिए. नहीं, मैं उनको नाम भेज दूंगा आपको जिन्होंने सवाल बनाए ये. हाँ. अगर आपको लगे कि क्या है हाँ, ठीक और है. ऐसी मुंह उठा के ठीक है, आगे ठीक सवाल है, पूछने के लिए, मैं नाम भेज दूंगा. ठीक है, ठीक है. डन डन चलिए डन डन. चैम, let's start. ओके. So the first thing that I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household. And I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द स्पोर्ट. एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज, व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार, इफ यू कीप गोइंग अप, you will obviously make a career out of this at some stage, because you are totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं, but मुझे ऐसा कभी doubt नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा. Clarity थी कि यही करना है. And I went ahead with it. फिर state cricket खेलते when I ended up playing under-19 India, that's when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under-19 tour, and that was to England. तो वो जो tour fee मिला, उसके बाद my father opened an account for me, जाके joint account खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा realize हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा path इधर जा सकता है as an individual. I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहां से I think वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार, it is not going to be a waste of my time. Whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ. पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ.
जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं नहीं नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। मैं बसों अच्छा। में जाता था। पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए, साइकिल भी थी मेरी। साइकिल पे पीछे वो कैरियर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, हाँ मडगार्ड हाँ, बोलते हैं, कैरियर कैरियर। कैरियर कैरियर हाँ कैरियर कैरियर में कैरियर। किड बैग ठूस हाँ के और फिर उस पे जाता था। फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, हाँ। तो उस पे भी जाता था। बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी। हाँ। बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट। ओके। ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर, और ओके। उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था, ही हैड अ हम्म। चेम्बर। सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी। वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था। डीडीसी डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी पकड़, अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था। हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे। हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भी है, स्टाफ है। स्टाफ है। वो है किसका स्टाफ है, मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया। वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया। नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों हम्म। की अलग ही और कॉन्फिडेंस हम्म। होता था यार, उनसे वापस हाँ। काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते फिर। मैं क्या करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था, हाँ। तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ। तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा हाँ। या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी। लो जी, चहल यहाँ भी आ गए। हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई। तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। हद्दी हो गई भाई। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसलिए घर नहीं आना वापस। ये भागेगा, सिर्फ टिकटॉक ऑन करके अरे भागेगा मैंने चारों तरफ। मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह हाँ, रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरपुरब के मतलब, टाइम। हाँ। छबील छबील मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, नहीं देयर अ नहीं लॉट ऑफ नहीं नहीं थिंग्स। नहीं नहीं नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है, हाँ। और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। हाँ। ठीक है, वो सबको रो छोले, रो के पिलाते हैं। हाँ हाँ, हाँ। वो छोले पूड़ी हाँ। हलवा वाला होता है, और रोड पे मिल रहा हाँ। होता है। तो हाँ। बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले हैं, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। हाँ। हाँ। तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को। तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ। छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी। अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही हाँ। उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे, वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिरे, गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी, डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ। बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीरका पकड़ी और हम्म। चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। हाँ, मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था। से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते थे। था। सो अमेजिंग टाइम्स। I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार माय फादर वाज वेरी क्लियर कि पढ़ाई में उनका, ऑब्वियसली उनका फोकस पढ़ाई में था, बट ही वाज वेरी क्लियर कि you have to study along with playing, and only
when you can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that time, I want you to work hard in both. तो उसके बाद जब results obviously आने शुरू हुए, and under 19 tours happened, and then he saw कि cricket ज़्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, because लोगों से भी सुनते थे, कोच से feedback आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये chance देना चाहिए. तो support मुझे काफी मिला. प्लस दूसरी बात ये थी कि I mentioned it before also कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब बहुत चीजें होती है, many factors happen where things are not fair. I would just put it like that. I wouldn't go elaborate it too much. तो वहां पे एक opportunity था जहाँ पे obviously a certain someone chose to step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा. सो ही अंडरस्टूड, एंड ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में. वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले. तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज. ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो. ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना. ये सब मैं नहीं करूंगा. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया. मैं आई वाज ब्रोकन, बट दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा. तो दैट लेसन ही गेव मी, बिकॉज यू कैन ओनली रिलाई ऑन योर हार्ड वर्क, एंड दैट आई सॉ फ्रॉम माय फादर who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है. So those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है. So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी चाहिए, that is fair. But to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूं? Is there any moment that you thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment, and I'm sorry if I'm making you emotional? No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. Uske baad se yaar, realize until something big happens in your life, you sort of. True. I was 18, and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started going well, I started thinking yaar ki what is it really that I could have done which meant something. And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is ki whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. You can go spend time with them, but these are the things you can do कि उनको एक comfortable life मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in an emotional way, but I always think positive, क्योंकि
that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life, you know, I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख, थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल। So, विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा। या मेरे को लगता था ये हर दिन क्यों बोलता है ये यार, वो जो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार, अनबिलीवेबल। वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता। वो फैंटम सिगरेट हमदर्द का टॉनिक सिनकारा पे जाके, हैं हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब नहीं, ये सब वापस नहीं आ सकता। सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली। संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने, ठंडी ठंडी। क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के। अरे वो वक्त ही अलग था, कमाल। तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार, I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर। अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ उससे। नो आई डोंट, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, आई डोंट सडनली बिकम पॉश विद हिम, बिकॉज टू मी लिविंग लाइफ खुल के इज द ओनली वे टू लिव। और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो आई डोंट बिलीव इन हैविंग अ लेयर on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है, where you are in a place to talk about something which is serious. It means something. Obviously you won't talk like, भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have, you'll be more articulate, you'll explain it well. But जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं close हूँ, हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है. No, I'll tell you why मैं सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया. तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था. तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ. उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया. कि how it was in my house कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है. बिल्कुल सर. ये I just read 2 days back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है. फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं, उसका फिर लिक्विड डालते हैं. भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम. सेम चीज है, मेरे को रुका गया. अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी. एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, दिस इज हाउ इट वाज. यार हम नाली से इसलिए मैं सवाल लेके आया था. पॉलीथिन एग्जैक्टली आप कह रहे हो निकालनी नहीं हमको. हम नाली से बॉल निकाल लेते. मैंने भी, या फिर वो 2 डंडियों मैंने बहुत नाली से बॉल निकाला है. 2 डंडियों से. द बेस्ट होता था 2 होते थे,
ये कहता डाल दे, अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा, डाल दे डाल दे बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना। और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो, एक माहौल ऐसा होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी। मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था। तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, 2 पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना। तो ये जो एक स्किल होता है ना कि आपने कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के रिसोर्सेज से। तो वो पैसे जोड़ने, पहले ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड बनाना, और दुआ भी करना कि हवा ना आए, आज हवा नहीं चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हवा नहीं था। चलनी। और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो 12:30-1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है और लगे सोसाइटी में माहौल होता था, सारे आ जाते थे नीचे, क्राउड भी हो जाती है और मजा आ रहा है, मजा चल रहा है, यू नो। सो दोस वर द डेज, लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं। बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में कोई रहता नहीं, तो आप पूछोगे थोड़ा ना, जाके पाइप से चढ़ गए 2-2 फ्लोर, कोई डर नहीं होता था, पाइप से चढ़ गए सेकंड फ्लोर की बैल्कनी में, वहां से बॉल लेके आ गए। ये सब चीजें बहुत मेरे को, those things will always and always be very very dear to me. You know, to be honest, when I was growing up, I have played more cricket because that was a norm, because you can, ऐसा ही माहौल था, थोड़ी बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया, और इसमें ये नौलियों में से बॉल उठाना, कांचे तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे, मॉम पेल रही, उसके बाद ये नॉर्मल था। हाँ, मैं वो लड़का था जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए। सारे भाग जाते थे, उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा, साला फंसता मैं ही था हमेशा। Okay, on that note, my third question to you is, where were you exactly when Amir Sohail hit Prashad for a 4, trash talked, and then saw his off stump send for a cartwheel right the next ball? Where were you? Well, this is an iconic moment. Everyone knows about this. I was at home. Obviously, iconic moment. मतलब मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ। मुझे लगा Exactly. ये वो वैसा, वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है। Exactly. हाँ, हम तो नीचे जाकर, वो सबसे आइकॉनिक। हाँ, हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे, एक बनता था आमिर सोहेल, एक बनता था प्रसाद, और विकेट पे सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया। इतनी बार इनैक्ट किया हमने वो सीन। आई थिंक वो दिन नहीं भूलेंगे, चाहे, आई मीन, इफ यू आर अ क्रिकेट फैन और नॉट, if you watch sports or not, but I think that day a lot of people in India would not forget. That was such a moment. No chance. Amazing. Those memories are golden memories. Amazing times. Those matches in Sharjah जो हम देखते थे, वो नहीं वापस आ सकते. You know, even football, I remember in the 2000s, everything of that time, 90s, late 90s, 2000s, वो और ही अलग था. I was a big Madrid fan even then. Although I'm a big Cristiano fan, but वो बाद में develop हुआ. But Madrid, that, you know, white kit for me was just something magical. वो matches देखने, you know, Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo, वो जो माहौल था ना, and that level of football was something else. Those memories will never go away. Like आपने अभी documentary, I don't know if you've seen Last Dance. I have. Superb. I mean, man, whether you know basketball or not, you know Rodman, you know Pippen, you know Michael Jordan. True. You know Kobe Bryant, you know Shaquille O'Neal, because you have grown up watching those games in the morning, and it's, you know, nothing comes close. So when I watched that documentary, it's that footage of that time, that for me, whatever the, you know, the documentary might have been, मैंने मतलब है तो outstanding. अगर खराब भी होती ना, मैं सिर्फ footage के ऊपर ही देख जाता, क्योंकि वो मेरे memory में ऐसी बैठी हुई है. Just magical times, and I'm sure it's like that for everyone, you know, who grow up in their times. But for us, 90s will always be very, very special. I agree. Yeah, it was, man. It was. Yeah. And if people haven't watched The Last Dance, we haven't got paid to say this, but please go and watch it. It's amazing. Wow. Yeah. Only one word. Wow. Yeah, it's amazing. That man is unreal. Yeah. Wow. चलिए, champ, the fourth question now. तो जब बड़े हो रहे थे, तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, पर जो हम स्पोर्ट्स में थे, वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए. सिंपल.
ऐसे कोई दिन याद आता आपको जहां पे लगे कि यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था, समथिंग दैट वाज मे बी डेंजरस और मे बी स्टूपिड एंड thank God you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know, or were you always right and you didn't reach that level? नहीं, क्या बात कर रहे हो, बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी। हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं। इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं। नहीं, हैविंग सेड दैट, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे आई वाज वेरी स्टूपिड, वाज 15 अगस्त के टाइम, इट वाज 13th अगस्त, और वो जो टाइम होता है, एवरी फेस्टिवल बाय द वे इज मैजिकल व्हेन यू लिविंग इन अ सोसाइटी। फेस्टिवल का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे आएंगे, दोस्त आएंगे आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं।